तो आपको बता दें इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। आपको सीधे वहीं पर ले चलते हैं। We will then effect a live cross-border funds transfer between MD Menon and Governor Das using the PayNow and UPI platforms. And then we will have PM Lee and PM Modi deliver their remarks respectively. So on that note, let me bring your attention to the screens now for the PayNow UPI video. India and Singapore ties are rooted in strong commercial, cultural and people-to-people links. In recent years, collaboration in digital domain has created new possibilities for the two countries. In many areas of India's development priorities, Singapore is a key partner. Smart cities, urban solution, financial sector, skills development, ports, logistics, aviation and industrial parks. And now we are building new partnerships for the digital world. The Prime Minister and I also agreed that fintech can be another key pillar of our strategic partnership. India is a significant market for Singapore fintech companies, while Singapore, which is a global fintech hub, can be a gateway for India to enter the Southeast Asian market. Since 2014, under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, digital payment landscape in India has been revolutionized. India now accounts for around 40% of real-time digital payments globally, which is primarily driven by UPI. UPI, backed by state-of-the-art technology, enables fast and secure digital transactions even for small amounts. PayNow in Singapore is a foremost payments platform that lets its users send and receive funds quickly using just the mobile number. The launch of UPI, RuPay and Bheem enabled remittance app by Prime Minister Modi in Singapore in 2018, underlining the mutual spirit of breaking fresh grounds in India-Singapore partnership. Today, another milestone is being achieved as UPI and PayNow partner together for the benefit of both Indians and Singaporeans. With the help of UPI and PayNow Singapore, our people can now transact money with their loved ones in real time at low cost. This has been possible thanks to collaboration between Reserve Bank of India and Monetary Authority of Singapore. Let us see how this works. Let's try sending 100 Singapore dollars from India to Singapore. Simply log into your bank's mobile app or net banking. Go to Foreign Outward Remittance and agree with the terms. Enter the beneficiary's mobile number or VPA. Upon validation, proceed for transfer. Enter the amount. Check the summary and exchange rates and confirm with an OTP or UPI PIN based on your application's requirement. And you are done. A success screen will get displayed. So quick, right? Now let's try sending 10,000 Indian rupees from Singapore to India. Simply log into your PayNow participating member's mobile app, go to Overseas Transfer, select UPI and enter UPI ID. Upon validation, enter the amount. You can see the Singapore dollars equivalent amount and we are done with an instant confirmation of the transfer. Wow, that was fast. Presenting UPI and PayNow Singapore, making cross-border payments real-time and low cost. That's right, making payments in real time and low cost. Ladies and gentlemen, now that you've seen how the PayNow UPI linkage works on video, let's effect a live cross-border transfer between MD Menon and Governor Das, and this will be witnessed by. तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। भारत का यूपीआई सिंगापुर के PayNow को कनेक्ट करने की तैयारी यहां पर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग एक अहम करार कर चुके हैं। आपने कुछ देर पहले देखा कि कैसे इसका फायदा होने वाला है और इसी करार के बाद अब सिंगापुर में रह रहे भारतीय छात्रों को इसका जबरदस्त फायदा होने वाला है, क्योंकि यूपीआई जैसे कि आप भी इस्तेमाल करते हैं, आज सभी लोग आज के समय में यूपीआई इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई के जरिए अब सिंगापुर में रह रहे छात्र पेमेंट कर पाएंगे, यानी कि यहाँ से पेमेंट वहां हो सकती है, वहां से पेमेंट यहाँ पर भी हो सकती है। और अगर किसी माता पिता को भारत से सिंगापुर पैसे भेजने होंगे तो वो प्रक्रिया भी अब और आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। ये सब होगा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज
के जरिए, जिसे आज लॉन्च कर दिया जा चुका है। इस रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज के जरिए ही क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी और ऐसे में इससे काफी ज्यादा फायदा लोगों को होने वाला है। यूपीआई पे नाउ पेमेंट कनेक्टिविटी अब लॉन्च हो चुकी है। इसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में खुद जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वो इसमें शामिल है। अब भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल लेन देन और आसान हो जाएगा। जिस तरह से हमारे भारत में हमें एक जगह से अगर दूसरी जगह को पैसे भेजने होते तो आज चुटकियों भर में वो चले जाते आसानी से, अब और आसान हो जाएगा विदेश में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए भी। तो फिलहाल बहुत पुरानी है, समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसीज का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। फ्रेंड्स, 5 साल पहले मैंने सिंगापुर में कहा था कि फिनटेक, इनोवेशन और युवा ऊर्जा में विश्वास का एक बहुत बड़ा उत्सव है। फिनटेक और डिजिटल क्रांति में भारत की सफलता की अगुवाई हमारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड युवा ही कर रहे हैं। आज फिनटेक की दुनिया में भारत के हजारों स्टार्टअप्स अपना लोहा मनवा रहे हैं। इसी ऊर्जा की वजह से आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई
भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। मर्चेंट्स और कंज्यूमर्स दोनों ने ही इसे ज्यादा से ज्यादा वे अपना रहे हैं। इसलिए आज बहुत से एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि जल्द ही भारत में डिजिटल वॉलेट ट्रांजैक्शन नकद लेन देन से अधिक हो जाएंगे। पिछले वर्ष यानी 2022 में यूपीआई के माध्यम से करीब 126 लाख करोड़ रुपए यानी लगभग 2 ट्रिलियन सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के ट्रांजैक्शंस हुए हैं। अगर मैं नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करूं तो ये भी 7,400 करोड़ से अधिक होता है। ये दिखाता है कि भारत का यूपीआई सिस्टम कितनी बड़ी संख्या को आसानी से और सुरक्षित तरीके से हैंडल कर रहा है। अच्छा ये भी कि विभिन्न देशों के साथ यूपीआई की पार्टनरशिप भी बढ़ रही है। सिंगापुर पहला देश है जिसके साथ आज पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च हुई है। मैं सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी, भारत के रिजर्व बैंक और इस प्रयास को सफल बनाने में जुड़े सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं दोनों देशों की जनता को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।